My dear students, welcome to Mathological. Let us start another session on divisibility rules. First question. Digits of a three-digit number A are written in the reverse order to form another three-digit number B. If B is greater than A and B minus A is perfectly divisible by 7, then which of the following is necessarily true? There are three-digit numbers A and B. ठीक है, so एक three-digit number A है. Let us say that number is XYZ, XYZ, और three-digit number है, तो this can also be written as 100X plus 10Y plus Z. And digits are written in a reverse order to form another three-digit number B. Very important, B will be Z, Y, X. And since it is question is also mentioning that this is a three-digit number, रिवर्स करने के बाद भी थ्री डिजिट नंबर ही फॉर्म हो रहा है, दैट इंप्लाइज कि z इज नॉट इक्वल टू 0, x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. इजंट इट सो? क्या ये पार्ट क्लियर है? सो ZYX कैन बी रिटन एज 100Z प्लस 10Y प्लस x एंड B इज ग्रेटर देन A, ऑल्सो गिवन B माइनस A इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 7, यानी कि B माइनस A हमारा 7 का मल्टीपल है. B minus A will be 100Z plus 10Y plus X minus 100X plus 10Y plus Z. So 100Z minus Z will be 99Z. 10Y से 10Y कैंसिल आउट हो जाएगा और X minus 100X is 99X with negative sign. So 99 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा Z minus X. 99 into Z minus X. And question is saying that B minus A is perfectly divisible by 7. यानी कि 99 into Z minus X is a multiple of 7. और 99 में तो 11 है और 9 है, 7 तो कहीं है ही नहीं, तो डेफिनेटली Z minus X will be a multiple of 7. और Z और X डिजिट्स हैं, तो Z minus X will be a multiple of 7, but the only possible value is 7. 7 होगा, 0 हो नहीं सकता, बिकॉज 0 होने पे फिर 7 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट 0 ही हो जाएगा पूरा नंबर हमारा. ठीक है, यानी कि XYZ सारे के सारी वैल्यूज इक्वल होगा, सारी डिजिट्स इक्वल होंगी, तो डेफिनेटली Z minus X हैज टू बी इक्वल टू 7. एंड इफ दिस इज सो, Z का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 9. इफ Z is 9, X will be 2, and if Z is 8, X will be 1. If Z is 7, X has to be 0, but that is not possible. So these are the only two possibilities, that Z is 9, X is 2, or Z is X, Z is 8, X is equal to 1. क्वेश्चन पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है कि ए की रेंज क्या होगी, ए की रेंज क्या होगी. ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक वैल्यू हमें दिख रहा है कि दैट Z is 8 एंड X is 1. ओके, सो इफ Z is 8 एंड X is 1, तो क्या क्या वैल्यूज हो सकता है फॉर ए? क्योंकि Y के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन ऑन Y, तो Y कैन टेक एनी वैल्यू. सो यहां से हमें सॉल्यूशंस मिल सकते हैं फॉर ए, बिकॉज ए में X पहले आएगा, सो ए विल बी इक्वल टू 108 हो सकता है, or it could be 118 or 128, 138 and so on till 198 possible values of A. Or second scenario, when Z is 9 and X is 2, so values of A can be 209, 219, 229, 239 and last value till 299. So these are all the values of A. Total 18 values are there. But question range पूछ रहा है, values नहीं पूछ रहा है, तो minimum value कितना आ रहा है? Minimum value of A is 108 and maximum value of A is 299. So A is between 108 is less than equal to A and A is less than equal to 299. क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या गिवन? A is between 100 and 299, so that is correct. ऑप्शन बी देखते हैं, नेसेसरीली ट्रू. ये ऑप्शंस में कहीं पे कुछ तो गड़बड़ लिखा है, 100 एंड पहला ऑप्शन गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे 108 होना चाहिए, अदरवाइज दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी 108 इज लेस देन A एंड A is less than 299. So first option will be incorrect.
बिकॉज 108 के इक्वल भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है, 108 होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन में, अदरवाइज दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज 107 इज लेस देन ए इज लेस देन 300, सारी वैल्यूज हमारी 108 से 299 के बीच में है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी 112 इज लेस देन, अगेन 108 एक वैल्यू है जो कि नहीं लाई कर रहा है इस रेंज में, और सेम अप्लाइज फॉर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is the 4-digit positive number, positive integer, and B is the 4-digit positive integer formed by reversing the digits of A. If A minus B is positive and divisible by 45, then find the number of possible values of A. कितनी values possible होंगी? Pause the video and try to solve it. A is a 4-digit number, so let us say A is equal to PQRS, and B is also a 4-digit number formed by reversing the digits, so B is equal to SRQP. And since B is also a 4-digit number, S will not be equal to 0. P तो 0 नहीं है, obviously S भी 0 नहीं है। Okay? अगर सिर्फ मेंशन होता कि B is an integer formed by reversing the digits of A, तो फिर हम नहीं कह सकते थे S might have been 0, क्योंकि रिवर्स करे हो सकता है 3-digit नंबर बन जाता, बट स्पेसिफिकली मेंशन है that implies that S is not equal to 0. A minus B is positive and divisible by 45, तो A minus B कर लेते हैं। A is equal to 1000 times P plus 100 times Q plus 10 times R plus S. This is the value of A. Okay. And similarly, B is equal to 1000 times S plus 100 times R plus 10 times Q plus P. So A minus B will be equal to 1000 P minus P. So that is 999 times P. Similarly, 100Q minus 10Q तो प्लस 90Q, प्लस 10R minus 100R तो माइनस 90R, एंड प्लस S minus 1000S तो माइनस 999S. तो दिस इज इक्वल टू 999 कॉमन ले लो P और S में, तो P माइनस S 999 टाइम्स P माइनस S प्लस 90 टाइम्स Q माइनस R. ओके, क्लियर है? So divisible by 45 है, A minus B is divisible by 45. 45 is 9 into 5, यानी कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, को प्राइम फैक्टर्स है 9 और 5. तो फर्स्ट टर्म को फोकस करो, 999 इंटू P माइनस S है, तो डेफिनेटली डिविजिबल है 9 है, 9 से डिविजिबल तो है, 5 से डिविजिबल नहीं है 999, तो P माइनस S शुड बी डिविजिबल बाई 5. ओके, एक सेकेंड पहले पूरा ढंग से समझ लेते हैं, ये कंक्लूजन सही नहीं होगा जब तक पूरी बात को ना समझे. देखो 999 इंटू P माइनस S है प्लस 90 टाइम्स Q माइनस R है, 45 से डिविजिबल होना चाहिए, 90 इज 45 इंटू 2, तो 90 इंटू Q माइनस R, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 45. तो सेकेंड हाफ तो हमारा मल्टीपल ऑफ 45 है ही है, तो फर्स्ट हाफ मस्ट ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 45. अगर हमारा नंबर A माइनस B है मल्टीपल ऑफ 45, तो फर्स्ट हाफ भी हमारा मल्टीपल ऑफ 45 होना चाहिए. और 999 हमारा 999 तो ऑलरेडी 9 का मल्टीपल है, 999 इंटू P माइनस S, तो 999 इज 111 इंटू 9, तो P माइनस S मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5, ये तो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए. और मल्टीपल ऑफ 5 होने के तरीके क्या है, इधर इट इज इक्वल टू 5 और 10 और 0. 10 हो नहीं सकता बिकॉज डिफरेंस है, 0 हो नहीं सकता बिकॉज 0 होने के लिए, नहीं 0 तो हो सकता है, 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, P और S को इक्वल होना चाहिए, P एंड S शुड बी इक्वल. ठीक है, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? या तो फिर 0 होगा या इक्वल टू 5 होगा. दिस इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 5. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दो केसेस मिले हमें. वन केसेस दैट P माइनस S इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड केसेस P माइनस S इज इक्वल टू 5. So 2 cases are there. First case is when P minus S is equal to 0. Second case is when P minus S is equal to 5. So if P minus S is equal to 0, then P can be equal to 1 and S will also be equal to 1. P can be equal to 2, S will also be equal to 2, and so on till both, when both are 9. So 9 possible cases are there.
9 possible cases are there, isn't it so? And if p minus s is equal to 5, in that case p can be equal to 6 and s will be equal to 1 because p and s cannot be 0. ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि दे cannot be 0. तो 6 and 1, 5 और 0 सॉल्यूशन नहीं होगा. 7 and 2, 8 and 3 and 9 and 4. These are the only 4 cases, 4 possible cases in the second case. ये तो केसेस हो गए पी और एस के लिए. अब बात करनी है हमको फॉर क्यू एंड आर. फॉर क्यू एंड आर, because it is also given that a minus b is a positive number, this is greater than 0. a minus b is greater than 0, so this whole summation should also be positive. देखो सेकेंड केस में तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज p माइनस एस इक्वल टू 5. सेकेंड केस में p माइनस एस इक्वल टू 5 और हमारा जो सम आया है a माइनस b इज इक्वल टू 999 इंटू p माइनस एस प्लस 90 इंटू q माइनस r. सो इफ p माइनस एस इज इक्वल टू 5, ऑलरेडी हमारा 999 इंटू p माइनस एस इज ग्रेटर देन 4000. अच्छा खासा बड़ा नंबर है, तो 90 इंटू q माइनस r कैन नॉट मेक इट नेगेटिव. क्यों? क्योंकि q और r हमारे सिंगल डिजिट वैल्यूज ही हैं. तो एट द मैक्स अगर q माइनस r का वैल्यू बहुत भी नेगेटिव होगा तो कितना जाएगा? -9 होगा, तब भी -810 होगा. तो डेफिनेटली इन द सेकंड केस हमें कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं मिलने वाला जहां पे कि माइनस भी पॉजिटिव नहीं हो, ऐसा नहीं मिलेगा. बट फर्स्ट केस में हमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज इन द फर्स्ट केस p माइनस एस इज 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0 ही हो जा रहा है. तो सेकंड टर्म शुड बी पॉजिटिव. इन द सेकंड केस दिस सेकंड टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज a माइनस बी हमारा पॉजिटिव है. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अच्छा सवाल है. a माइनस बी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सेकंड टर्म को हमारा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और सेकंड टर्म को ग्रेटर देन 0 होना है यानी कि 90 इंटू क्यू माइनस आर को शुड बी ग्रेटर देन 0. किस केस में? उस केस में जबकि हमारा p माइनस एस 0 है. फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं. ओके, सेकंड केस में कोई दिक्कत नहीं है. q एंड r कैन टेक एनी वैल्यूज. Q एंड R कैन टेक एनी वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी वैल्यू ले फर्क नहीं पड़ेगा. हमारा पूरा जो समेशन है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, तो Q और R अगर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं तो Q कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 9 एंड R कैन ऑल्सो टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 9. तो Q कैन टेक टोटल 10 वैल्यूज, R कैन टेक टोटल 10 वैल्यूज, और 4 वैल्यूज के केसेस बने हमारे P और S के. तो 4 वैल्यूज P एंड S कैन टेक, 10 वैल्यूज Q कैन टेक, 10 वैल्यूज R कैन टेक. टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 400 इन द सेकेंड केस. ओके, फर्स्ट केस की बात करते हैं. फर्स्ट केस में 90 इंटू क्यू माइनस आर शुड बी पॉजिटिव. 90 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्यू माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 0. तो फर्स्ट केस में क्यू माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 0. तो हमने वैल्यूज दिस कैन टेक. इफ क्यू इज 9, इफ क्यू इज 9, इन दैट केस इफ आर इज 8 तो चलेगा, आर 7 है चलेगा, 6 है चलेगा, 8 से लेके 0 तक की सारी वैल्यूज चलेंगी, यानी कि 9 वैल्यूज आर पॉसिबल इफ q इज इक्वल टू 9. इफ q इज इक्वल टू 8 देन r कैन बी 7, 6, 5 टिल 0, यानी कि 8 वैल्यूज आर पॉसिबल. r कैन नॉट बी इक्वल टू 8 और r कैन नॉट बी इक्वल टू 9 बिकॉज r जब 8 और 9 होगा तो हमारा q माइनस r या तो इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन q इज 7, टोटल वैल्यूज विल स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड फ्रॉम 6 टू 0 7 वैल्यूज होगा. जब ये 6 होगा 6 वैल्यूज होगा, जब ये 5 होगा 5 वैल्यूज होगा, और मिनिमम भी जाएगा तो Q 0 तो नहीं होगा बिकॉज Q 0 हो जाएगा, तब फिर Q माइनस R ग्रेटर देन 0 नहीं हो पाएगा. सो दैट इज वाई मिनिमम वैल्यू ऑफ Q विल बी इक्वल टू 1 और उस पर हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे 1. टोटल कितना बनेगा? 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. सो 1 से लेकर 9 तक का सम कितना होता है? दैट इज 45. दैट इज 45. तो इस केस में हमें P और S के लिए मिले हैं 9 सॉल्यूशंस एंड फॉर R एंड Q 45 सॉल्यूशंस. तो 9 into 45, total number of numbers is 405. Very beautiful question. 400 answers मिले हमें when p minus s is equal to 5 और p minus s is equal to 0 पे हमें 405. Total number of solutions, total number of possible values of A is option D, that is 805. Chances are कि तुम फर्स्ट केस को मिस कर जाओ, या चांसेस यार कि फर्स्ट केस को मिस ना करो तब भी ये वाला पार्ट ना क्लिक करे और गलत कर दो सॉल्यूशन. तो ये दोनों बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक बार फिर से समझ लेना, ये दोनों बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले वी आइडेंटिफाइड दैट a minus b इज पॉजिटिव. तो अकॉर्डिंगली हमने लिखा a minus b केम आउट टू बी 999 टाइम्स p minus s प्लस 90 टाइम्स q minus r. देन वी नो कि ये पूरा हमारा जो समेशन है a minus b दैट इज डिविजिबल बाय 45, यानी 45 का मल्टीपल है, और 90 इंटू q minus r इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 45, यानी कि 999 इंटू p minus s शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 45. 999 में हमारा 9 तो आ ही रहा है, 9 इंटू 111 यानी कि p minus s शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, और अगर p minus s को मल्टीपल ऑफ 5 होना है तो या तो 0 होगा या 5 होगा. ठीक है,
या तो 5 होगा। अच्छा -5 भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट -5 के केस में पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, तो ये एडिशनली यहां पे बता देता हूं कि और -5, बट जो -5 वाला केस होगा व्हेन p माइनस एस इज इक्वल टू -5 a माइनस बी इज लेस देन 0। ये बात बताना भूल गए थे, ये भी बताना जरूरी है, ठीक है, कि जब p माइनस एस इक्वल टू -5 होगा तब भी अल्टीमेटली हमारा 45 का मल्टीपल तो आ जाएगा, बट नेगेटिव नंबर आएगा, ये माइनस बी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो हमारा सॉल्यूशन में एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, क्लियर है। और -10 तो हो नहीं सकता, 10 भी हो नहीं सकता, तो और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है p माइनस एस के लिए। दीज आर द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If n is equal to 3 to the power 2a plus 2 minus 8a minus 9, where a is the natural number, then n is always divisible by. So n is given as 3 to the power 2a plus 2 minus 8a minus 9, or 2a plus 2 can be written as 3 to the power 2a into 3 square. So this is 9 times 3 to the power 2a minus 8a minus 9. अब 3 स्क्वायर तो है नहीं कि इसको फैक्टराइज, या a स्क्वायर तो है नहीं फैक्टराइज कर पाए, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करना तो मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे ऐसे केस में? तो इन एनी सच क्वेश्चन द बेस्ट अप्रोच इज कि n की कुछ वैल्यूज पुट करके देख लो, हमें सॉरी a की कुछ वैल्यूज पुट करके देख लो, n की वैल्यू तो नहीं पता है, n की तो निकालनी है, a इज अ नेचुरल नंबर, सो a इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, सो एट a इज इक्वल टू 1 n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9, so 9 into 9 81 minus 17, so n is coming out to be 64 at a is equal to 1. then put कर लेते हैं a is equal to 2, so a is equal to 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, n will be equal to 9 into 3 to the power 4 minus 16 minus 9. okay, so this is 3 to the power 4 which is 81, so 9 into 81 is 729 or minus 25, this is 704 और 704 is 640 plus 64 यानी 64 into 11, सो a इज इक्वल 1 पे भी 64 आ रहा था, और 64 देते ही हमें समझ में आ गया कि 56 आंसर हो नहीं सकता, 128 नहीं हो सकता, 192 नहीं हो सकता, तो सिर्फ फर्स्ट केस से ही हमें वैसे तो आइडेंटिफाई हो गया था कि ऑप्शन बी आंसर होगा, बट सेकंड से कंफर्म भी हो गया दैट यस 64 विल बी द आंसर, दैट n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 64। ओके, बट ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट एक और तरीका है जिसको कि समझना चाहिए हमें, जो समझ में आना चाहिए, बिकॉज कन्वेंशनल वो मेथड समझ जाओगे तो और चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि कई बार ऑप्शंस ऐसे होंगे जो फंसाएंगे, तो वहां पे हमें कन्वेंशनल मेथड भी पता होना चाहिए। ओके, तो सेकंड मेथड देखते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के लिए दिस मेथड इज बेस्ट, बट बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो सेकंड मेथड है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो, n कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर यानी 9 इंटू 3 टू द पावर 2a माइनस 8a माइनस 9, और 3 टू द पावर 2a is equal to 9 to the power a, 3 square to the power a यानी 9 to the power a, 9 into 9 to the power a minus 8a minus 9, और 9 to the power a can be written as 8 plus 1 to the power a, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस 8a माइनस 9 हो रहा है ना, ठीक है, माइनस 8a माइनस 9, सो 8 plus 1 to the power a क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8 to the power a plus ac1 8 to the power a minus 1 into 1 to the power 1 plus ac2 8 to the power a minus 2 1 to the power 2 plus ac3 8 to the power a minus 3 1 to the power 3 and so on, acn minus 1 8 to the power 1 1 to the power n minus 1 plus acn minus 1 नहीं ac, एक सेकेंड n क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, aca minus 1 और फिर लास्ट में aca a to the power 0 और 1 to the power a माइनस 8a माइनस 9, बेसिकली 1 की कोई पावर हो तो 1 ही आ जाएगा, तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू 9 इंटू 8 टू द पावर a प्लस a 8 टू द पावर a माइनस 1 प्लस ac2 8 टू द पावर a माइनस 2 एंड सो ऑन टिल लास्ट में आएगा aca माइनस 2 8 स्क्वायर प्लस aca माइनस 1 इज a ओनली, सो प्लस a इंटू 8 प्लस लास्ट में आएगा a 1 माइनस 8a माइनस 9। ओके, क्लियर है।
सो ऑल दीज टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू 8 स्क्वायर, ये सारे के सारे टर्म्स हमारे 8 स्क्वायर के मल्टीपल हैं. a to the power a to the power a minus 1 a to the power a minus 2 till 8 square. All the terms are a multiple of 8 square, multiple of 64. और लास्ट में जो दो टर्म बच जा रहे हैं इनको बाहर निकाल लो ब्रैकेट से. So this can be written as 9 into 64k, multiple of 64 for all the terms till 8 square, plus 9 into 8 is 72a plus 9 minus 8a minus 9, 9 से 9 cancel out हो गया. So this will be 9 times multiple of 64 plus 72a minus 8a, that is also plus 64a. So both terms are a multiple of 64, hence this will be a multiple of 64. Option B is the answer. ठीक है, एग्जाम में करेंगे तो वैसे ही, बट ये मेथड भी समझ में आना चाहिए. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the largest positive integer n for which n cube plus 100 is divisible by n plus 10? What can be the largest positive integer n for which n cube plus 100 is divisible by n plus 100, n plus 10? Very very beautiful सा प्यारा सा क्वेश्चन. अब देखो, हमें n cube plus 100 के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, बट yes, we discussed in the last session about divisibility for a to the power n plus b to the power n. And we found out that if n is odd, then this is divisible by a plus b. a plus b is a factor of a to the power n plus b to the power n. बट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? n क्यूब दिख रहा है और प्लस 100 दिख रहा है. तो एक्चुअली दिस इज n क्यूब प्लस 100 यानी कि 10 स्क्वायर. अगर ये इंस्टेड n क्यूब प्लस 10 क्यूब होता तब तो मजा आ जाता, बिकॉज n क्यूब प्लस 10 क्यूब होता तो n प्लस 10 वुड हैव बीन अ फैक्टर. और क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि इज डिविजिबल बाय n प्लस 10. इफ दिस वाज n क्यूब प्लस 10 क्यूब देन n प्लस 10 एक फैक्टर होता, बट n क्यूब प्लस 10 स्क्वायर है और अभी भी हमें फैक्टर क्या चाहिए? अभी भी हमें n प्लस 10 फैक्टर चाहिए. तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं पे वी हैव टू कनेक्ट दीज टू एक्सप्रेशंस. n क्यूब प्लस 10 स्क्वायर, n क्यूब प्लस 10 क्यूब को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो अबाउट n क्यूब प्लस 10 क्यूब दैट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ n प्लस 10. जो नोन है वहीं से अननोन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज अननोन को रैंडमली कैसे निकालोगे? ठीक है, सो डेफिनेटली वी नो दैट n क्यूब प्लस 10 क्यूब इज अ मल्टीपल ऑफ n प्लस 10. ओके, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट n क्यूब प्लस 10 क्यूब टू n क्यूब प्लस 100? दिस इज n क्यूब प्लस 10 क्यूब यानी n क्यूब प्लस 1000, subtract 900 from it. Now this becomes n cube plus 100. Isn't it so? And this is also a multiple of n plus 10. So एक बात बताओ, n cube plus 1000 is a multiple. This is a multiple of n plus 10. This is n plus 10 into some constant k, which is an integer. तो ये n plus 10 का मल्टीपल है और हमारा अल्टीमेटली n क्यूब प्लस 1000 माइनस 900 भी n प्लस 10 का मल्टीपल है. सो दैट इंप्लाइज दैट 900 मस्ट बी डिविजिबल बाय n प्लस 10. यही तो मतलब हुआ कि 900 मस्ट बी डिविजिबल बाय n प्लस 10 और n इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो मैक्सिमम वैल्यू n प्लस 10 का क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू? अगर 900 हमारा मस्ट बी डिविजिबल बाय n प्लस 10 तो 900 इज इक्वल टू 9 प्लस 10 n प्लस 10 into some other constant k1. and if that is so, और हमें n plus 10 को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि n को मैक्सिमाइज करना है, n हैज टू बी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो अगर हमें n को मैक्सिमाइज करना है तो n plus 10 को भी मैक्सिमाइज करेंगे, और अगर n plus 10 को करना है मैक्सिमम तो k1 को करेंगे मिनिमम. और k1 मिनिमम कितना हो सकता है? इंटीजर है, मिनिमम कैन बी 1. तो 900 विल बी इक्वल टू n plus 10 when n is maximum, and hence n will be equal to 890. So maximum value of n will be equal to 890. Clear? So the largest positive integer n for which n cube plus 100 is divisible by n plus 10, that is equal to 890. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बिकॉज n क्यूब प्लस 100 के बारे में हमें एग्जैक्टली तो कुछ नहीं पता था, बट वी न्यू दैट n क्यूब प्लस 10 क्यूब इज द मल्टीपल ऑफ n प्लस 10, और वहां से कनेक्ट करके हमने सॉल्यूशन निकाल लिया कि n शुड बी इक्वल टू 890. इससे बड़ी कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हम 900 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. n क्यूब प्लस 1000 तो n प्लस 10 का मल्टीपल है, बट अगर 900 n प्लस 10 का मल्टीपल नहीं होगा
तो हमारा एन क्यू प्लस 100 कभी भी एन प्लस 10 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा, और अगर इसको मल्टीपल होना है तो 900 को एन प्लस 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा, और एट मैक्स एन प्लस 10 इक्वल टू 900 हो सकता है, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 890, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू 890। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था हमसे कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन कैन सेटिस्फाई दैट एन क्यूब प्लस 100 इज डिविजिबल बाई एन प्लस 10, तो ऐसे कितनी वैल्यूज हो सकता है एन का, यही फाइंड आउट करने को क्वेश्चन पूछ सकता था। तो इन दैट केस हम क्या करते, ultimately for this to be satisfied 900 must be a multiple of n plus 10, और अगर 900 को होना है मल्टीपल n plus 10 का, तो दैट इंप्लाइज कि n plus 10 इज अ फैक्टर ऑफ 900, n plus 10 is a factor of 900, isn't it so? Clear है? 900 is equal to 9 into 100, so this is 2 square, 3 square, 5 square, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 फैक्टर्स हैं। बट सारी फैक्टर्स हमारे n प्लस 10 के इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज सम फैक्टर्स विल बी लेस देन 10, सम फैक्टर्स विल बी लेस देन 10, और सम फैक्टर्स में बी इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 भी होगा बिकॉज 10 भी तो फैक्टर है इसका। तो इफ n प्लस 10 हैज टू बी ग्रेटर देन 10, तो फैक्टर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 10। 900 के जो फैक्टर्स 10 से छोटे हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स 10 से छोटे निकलेंगे, टोटल फैक्टर्स आ रहे हैं 27, और कौन कौन से फैक्टर्स 10 से छोटे निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो फैक्टर होगा नहीं, 8 भी फैक्टर नहीं होगा, 9 होगा, ऑल्सो 10। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर लेस देन इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स आर लेस देन इक्वल टू 10। So 27 minus 8, 19 factors will be there, for which we'll be getting a positive n, positive integral value of n. Is that clear? ठीक है, 19 फैक्टर्स टोटल आ जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 12 15 18 20 25 30 36, देन क्या आएगा 45 50 60 75 150 300 450 एंड 900। अभी कई सारे फैक्टर्स रह गए हैं अपने, 12 15 18 20 25 30 36 45 50 60, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 4 फैक्टर्स अभी बचे हुए हैं। ठीक है, 4 फैक्टर्स तो रह गए अपने, तो 1 इंटू 900 2 इंटू 450 3 इंटू 300 4 इंटू 225, यहाँ 225 रह गया एक, तो 180 रह गया, 100 रह गया, और 90 भी रह गया था। सो दीज आर ऑल द वैल्यूज, all the 19 factors. Okay, clear है? Next question, how many 3-digit numbers are there such that all are divisible by 55 and the difference between the 100th digit and 10th digit is one more than the unit? So how many such numbers are there, such 3-digit numbers are there such that all are divisible by 55 and the difference between the 100th digit and 10th digit is one more than the unit digit? तो all are divisible by 55, तो स्मॉलेस्ट सच नंबर इज व्हाट, 110, और लार्जेस्ट क्या होगा, 990, 110 165 220 एंड सो ऑन टिल 990। टोटल नंबर्स कितने आएंगे, टोटल आ जाएंगे 990, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है 55 के गैप पे, कॉमन डिफरेंस 55 का है, तो 990 माइनस 110, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो दिस विल बी 880 बाई 55, 16 प्लस 1 17 नंबर्स होंगे, 17 टोटल नंबर्स है। द डिफरेंस बिटवीन 100th digit and 10th digit is one more than the unit digit, is one more than the unit digit। तो अगर हमारा नंबर ABC है, लेट अस से नंबर इज n is equal to ABC, देन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस दिया है, ठीक है, डिफरेंस दिया है, यानी कि A माइनस बी भी हो सकता है 100th digit और 10th digit का, या फिर B माइनस A भी हो सकता है, तो मॉड ऑफ A माइनस B, दिस इज द डिफरेंस, दिस विल बी इक्वल टू वन मोर देन यूनिट डिजिट, यानी कि दिस इज इक्वल टू C+1, this has to be equal to C+1,
अब हमारे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये इधर 0 इज द यूनिट डिजिट और 5 इज द यूनिट डिजिट, तो या तो 0 है हमारा यूनिट डिजिट या फिर 5 है। अगर इफ c इज इक्वल टू 0 देन mod of a minus b must be equal to 1. If c is equal to 5 then mod of a minus b will be equal to 6. यही तो दो केसेस है। बट अगर c is equal to 0 आ रहा है तो नंबर्स हमारे क्या बन रहे हैं उस केस में? इफ c is equal to 0 तो नंबर्स बन रहे हैं हमारे 110, 220, 330, 440 टिल 990। तो उन सारे के सारे केसेस में 100 डिजिट और 10 डिजिट सेम है दोनों केसेस में, सारे केसेस में, ऑल 9 केसेस, इन ऑल 9 केसेस a इज इक्वल टू b, एंड इफ a इज इक्वल टू b तो a माइनस b तो 0 आ जाएगा। तो कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, बिकॉज हमें चाहिए mod of a minus b इक्वल टू 1, और इन ऑल सच केसेस वी आर गेटिंग a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो नो सॉल्यूशन व्हेन c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 0 पे 0 सॉल्यूशंस है, 0 सॉल्यूशंस है। सेकंड केस चेक करना पड़ेगा, c इज इक्वल टू 5 पे mod of a minus b शुड बी इक्वल टू 6, ठीक है। तो 165, 275, 385, 495, फिर आएगा 605, 715, 825 एंड 935। अगेन फॉर फर्स्ट फ्यू नंबर्स 165 में डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 5 का, ए और बी का डिफरेंस आ रहा है 5 का, बट हमें चाहिए 6 का डिफरेंस, तो नॉट सेटिस्फाइंग। 275, 385, 495 में भी यही सेम लॉजिक है, दीज आर नॉट सेटिस्फाइंग द प्रिवेलिंग कंडीशंस जो हमें चाहिए। mod of a minus b इक्वल टू 6 चाहिए, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। 605 में डिफरेंस है 6 आ रहा है, 715 में भी 6 का डिफरेंस है, 825 में भी और 935 में भी। सो देयर आर ओनली 4 नंबर्स व्हिच आर सैटिस्फाइंग दीज कंडीशंस, ओनली 4 सच नंबर्स आर देयर। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। 605, 715, 825 and 935 are the only numbers, only 4 numbers which are satisfying both the conditions. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। और उनके नंबर्स लिमिटेड थे तो डायरेक्टली मैनुअली भी ट्राई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a natural number x is such that every digit is strictly greater than the previous digit from left to right. So how many values of x are divisible by 15? A natural number x is such that every digit is strictly greater than the previous digit from left to right. How many values of x are divisible by 15? कंडीशन तो x पे कोई दिया नहीं है कि 1 डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा, कुछ भी हो सकता है नंबर हमारा। द ओनली कंडीशन इज दैट x इज सच दैट एवरी डिजिट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर than the previous digit from left to right. For example, number could be, let us say 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं? 1 2 5 2 6 9, कोई भी नंबर जहां पे कि हमारा डिजिट्स आर इंक्रीजिंग। इक्वल भी नहीं होना चाहिए बिकॉज स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखा है, तो क्लियरली डिजिट शुड बी ग्रेटर, यानी कि क्या क्या अलाउड नहीं है? 1 2 2 4 नॉट अलाउड बिकॉज 2 digits आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली 1 4 6 3 इज ऑल्सो नॉट अलाउड बिकॉज 6 के बाद में फिर 3 आ जा रहा है, जबकि डिजिट्स हमेशा एवर इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्लियर है? दैट इंप्लाइज कि ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी द हाइएस्ट डिजिट, यूनिट डिजिट विल बी द लार्जेस्ट डिजिट। इजंट इट सो? और 15 से डिविजिबल होना है, अगर डिविजिबल बाई 15 होना है, 15 क्या है? 15 इज 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, यानी कि 5 से मल्टीपल भी होना है और 3 का मल्टीपल भी होना है। और अगर 5 का मल्टीपल होना है तो इन दैट केस यूनिट पे या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, दो ही केसेस हैं, या तो यूनिट हमारा 0 होगा या फिर यूनिट हमारा 5 होगा। और अगर यूनिट 0 हुआ तो लार्जेस्ट भी यूनिट होना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूनिट हमारा 0 भी हो और लार्जेस्ट भी हो? क्या ये पॉसिबल है? सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, व्हेन नंबर इज 0। तो फर्स्ट केस व्हेन यूनिट इज इक्वल टू 0, that is only possible when number is also 0, x is also equal to 0, but x is a natural number, x तो एक natural number है, तो this is not possible, तो no solution. So second case, when unit digit is equal to 5, when unit digit is equal to 5, तब हमें नंबर्स देखने पड़ेंगे। 1 डिजिट का कोई नंबर बन सकता है क्या? 15 से डिविजिबिलिटी है तो 1 डिजिट का तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट का कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन फॉर 1 डिजिट, 0 सॉल्यूशंस। 2 डिजिट नंबर्स, सबसे पहले तो सामने ही लिखा है 15, 15 विल बी देयर, 15 इज अ पॉसिबल नंबर।
फिर क्या हो सकता है 15 के बाद में, नेक्स्ट आएगा 30 के गैप पे, 30 के गैप पे, बिकॉज 15 के बाद नेक्स्ट 30 आएगा, तो 15 प्लस 30 नेक्स्ट नंबर विल बी 45। फिर नेक्स्ट आएगा 45 प्लस 30 75, बट 75 में 7 आ रहा है 5 से पहले, जबकि डिजिट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो 75 पॉसिबल नहीं, यानी 15 एंड 45 आर द ओनली टू सॉल्यूशंस। 2 डिजिट में 2 ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, 3 डिजिट में नंबर कुड बी 135, 135 हो सकता है, ठीक है। फिर 145 होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 145 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। 235 भी पॉसिबल नहीं है, 245 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 235 245 आर ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो 135 हमारा एक अकेला सॉल्यूशन हो गया क्या। फिर 345 में देखो, 345 यस 345 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 135 एंड 345, 235 245 सेटिस्फाई नहीं करेंगे। 235 क्या है, 135 से 100 ज्यादा है, तो 15 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, और बाय द सेम लॉजिक 135 से 245 110 ज्यादा है, तो वो सॉल्यूशन नहीं हो सकते। 235 245 विल नॉट बी द सॉल्यूशन, so only two solutions for 3 digit numbers। 4 digit में 1 2 4 5 could be a solution, 1 2 3 5 नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 1 3 4 5 नो, दिस कैन नॉट बी सॉल्यूशन, तो 1 2 4 5 में अकेला सॉल्यूशन मिलेगा 4 डिजिट में, और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। 5 डिजिट में 1 2 3 4 5, this is 12,000 which is a multiple of 15 plus 300 multiple of 15 plus 45 multiple of 15, so this is the only possible number in 5 digits। तो कितने नंबर्स हो गए हमारे टोटल नंबर्स, 2 डिजिट में 2 नंबर्स हो गए, 2 + 2 + 1 + 1, टोटल 6 सॉल्यूशंस आते हैं। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, दैट 6 वैल्यूज ऑफ x are divisible by 15 which are satisfying the given conditions। क्लियर है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या बात समझ में आई, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट कि एवरी डिजिट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना था 5 लार्जेस्ट डिजिट मिल रहा था हमको, तो हमारे जो बाकी डिजिट्स आएगा वो 5 से छोटा ही आएगा। 1 डिजिट पे कोई सोल्यूशन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 डिजिट पे हमें नंबर मिला, सबसे छोटा नंबर मिला 15, नेक्स्ट मिलेगा 30 गैप पे 45 मिला, और कोई पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली बाकी केसेस में हमारा 75 में 7 इज लार्जर देन 5। 3 डिजिट में नंबर हमारा 135 मिला, 345 मिला, 235 245 हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिजिट से क्या चाहिए, अगर 5 हमारा लार्जेस्ट डिजिट आ ही रहा है तो ओनली डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन्हीं को अरेंज करना है किसी तरह से। तो 3 डिजिट में हमारे पास 1 2 3 4 में से कोई 2 डिजिट लोगे, तो अगर या तो 1 2 होगा तो 125 बनेगा, नहीं है 15 का मल्टीपल, 1 3 होगा 135 सॉल्यूशन होगा, 1 4 होगा 145 सॉल्यूशन नहीं होगा, 2 3 होगा 235 सॉल्यूशन नहीं होगा, 2 4 होगा 245 सॉल्यूशन नहीं होगा, 3 4 345 यस दैट इज आल्सो सॉल्यूशन। फिर हमारे पास 4 डिजिट में आए तो हमारे पास डिजिट्स रह गई कितनी, 1 2 3 4 ही है 4 डिजिट के केस में, बट 1 2 3 4 में से अब इस बार हमको 3 डिजिट्स लेनी है, तो या तो 1 2 3 ले लेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा, 15 का मल्टीपल नहीं आएगा, 1 2 4 ले लोगे सेटिस्फाई कर जाएगा, 1 3 4 ले लोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दीज आर ओनली 3 केसेस। क्लियर है, ठीक है। 1 2 3 ले लिया, 1 2 4 ले लिया, और 1 3 4 ले लिया, 2 3 4 भी ले सकते हो, बट 2 3 4 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके क्लियर है। और फिर 5 डिजिट में तो एक ही केस पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, और वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज द सॉल्यूशन। हाँ, सेकंड तरीका हो सकता था इसका, 15 इज 3 × 5, तो एक चीज तो क्लियर है कि लास्ट यूनिट पे 5 आएगा, दैट इज द ओनली पॉसिबल केस जहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। एडिशनली सम ऑफ डिजिट्स, सिंस 3 का मल्टीपल भी हमें चाहिए, 15 का मल्टीपल है यानी कि 3 का मल्टीपल भी है, तो सम ऑफ डिजिट्स पे भी हम खेल कर सकते थे। सम ऑफ डिजिट्स कैन बी 3 और 6 और 9 और 12 और 15, यही तो 5 केसेस बनेंगे हमारे सम ऑफ डिजिट्स के, इजंट इट सो। और अगर सम ऑफ डिजिट्स हमारा 3 आ रहा है तो क्या नंबर हो सकता है, क्या पॉसिबल है ये, क्योंकि 5 तो इन एनी केस हमारा आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 6 आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स, द ओनली पॉसिबल केस इज 15, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। 9 आ रहा है तो 45, एक केस हो गया 45 का, या फिर 5 तो लास्ट में आ ही रहा है, 4 बच गया बाकी, तो 135 इज अनदर पॉसिबल केस। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि यहां से वाली चीजें अगर तुम्हें वहां से समझने में दिक्कत हो रहा हो, कितने सारे नंबर्स को टेस्ट करना पड़ेगा 15 से डिविजिबिलिटी, तो ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। 9 से डिविजिबल होना है, 45 हो गया या 135 हो गया। 12 से सोचो, 12 के केस में 5 तो हमारा ऑलरेडी आ रहा है, यानी कि 7 बच गया, अब 7 बनाना है तुम्हें 1 2 3 4 से, तो या तो 4 और 3 को ले लोगे, या तो 4 और 3 को ले लोगे, ठीक है। तो 4 और 3 को ले लोगे तो क्या हो सकता है नंबर हमारा
435, 345, बट 435 ले नहीं सकते बिकॉज एवरी डिजिट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर. 345 हो सकता है. और क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है? 1 2 और 4 को ले सकते हो तो 1 2 4 5. 15 बनाना है तो 10 होगा, सम चाहिए, और 1 2 3 4 का मिला के, सबको मिला के सम ही आता है 10. तो 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ केसेस हो गए. एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ ठीक है, 1 + 2 + 2 + 1 टोटल 6. मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा तुम्हें पसंद आया होगा, ज़्यादा समझ में आया होगा, बिकॉज सम ऑफ डिजिट से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं. तो इसलिए दोनों मेथड हालांकि समझे पीछे वाला मेरे जी, उस तरह से भी समझना है तुमको, अपने एंड पे एक बार सॉल्व जरूर करना है वैसे, बट ये मेथड अगर ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है तो ऐसे ही सॉल्व करो. ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा, और कोई भी डाउट नहीं रहोगे. देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना. एंड दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.